कैंसर देखभाल के लिए एसएसओ कैंसर अस्पताल बना एआई संचालित डायग्नोस्टिक्स शुरू करने वाला मुंबई का पहला अस्पताल। मुंबई 25 अगस्त 2025 स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एसएसओ कैंसर अस्पताल ने आज एसएसओ क्लिनिशियन फोरम कैंसर देखभाल में एआई आधारित नवाचार का आयोजन किया, जिसमें चिकित्सकों और स्वास्थ्य सेवा भागीदारों को ऑन्कोलॉजी के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया गया। इस कार्यक्रम में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई और डिजिटल उपकरण भारत में कैंसर का पता लगाने, उपचार और उत्तरजीविता को बदल सकते हैं। मुंबई में कैंसर देखभाल के लिए एक अग्रणी कदम में एसएसओ कैंसर अस्पताल ने आज एसएसओ मीडिया और क्लिनिशियन फोरम में Cure.ai के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। कैंसर देखभाल में एआई आधारित नवाचार अस्पताल मुंबई में Cure.ai के एआई संचालित इंसिडेंटल पल्मोनरी नोड्यूल IPN का पता लगाने वाला पहला अस्पताल बन गया। Surgeon, what we see is most of my concentration on patient-centric. All my decisions are going to be based on what surgeries we are going to perform, what protocols we are going to follow, or what the outcomes are going to be. And I think we right now lag behind a particular point is no matter how much time we try to give, there is some extra need that the patient has that probably we are not able to provide. And this gap that we have in probably in empathy and guiding the patient is what the technologies nowadays going to help us. We always see that there is when we feel after we have done a procedure and we are looking forward to seeing the patient again, the patient may not turn up, there may be missed appointments, there may be delayed reports, treatments getting delayed because of that. So I think this is where AI can step in, where we can scale empathy itself and make sure that in spite of all the effort that we put in, we see that patients fail later on. We just ensure that that doesn't happen. So I think a good point is at SSO what we're trying to do is integrate both the human and the AI side of it, where we have an approach where we have advanced technology not only in the operation theatre where we give best outcomes. Before treatment starts itself, we have technology being involved in ensuring that you have accurate diagnosis, and post treatment you have a situation where this technology is being used to follow up patients. So you have a situation where pre-treatment you have technology helping in detection of diagnosis, and post-treatment you have technology helping in assuring that the patient gets timely updates as to when they have to follow up, timely updates as to what investigations have to be done, and probably we can individualize this over a long period of time where certain patients who require faster follow-ups or are prone to recurrences are intimated faster. So I think at SSO what we are working is integrating both the human and the AI side of it. So this technology is not a replacement for the human touch, which is very essential. Probably it helps give alarms as to when there is a problem that is going the patient is facing, or when he needs to get a checkup done, he or she needs a checkup done. But a call from the sister or a follow-up from the support staff is something that cannot be replaced. It is the human, we aim to keep the human touch along with technology, and as I mentioned earlier, it is just scaling of empathy that we are attempting. So I think that gap is what we are trying to bridge at SSO, and I think it will go a long way in patient care. Discuss about the AI and its implication in the surgeries. So I'm Dr. Jitesh, and I'm working as a thoracic oncosurgeon at SSO, and majority of my work deals with lung cancers. So talking about lung cancer stands number one cancers in males and females combined, and it is the number one cause of cancer-related deaths to the fact that the number of people dying of lung cancer is more than the next four combined. So the problem here is by the time the lung cancer is diagnosed, 80 to 85% of the patients are advanced stage or metastatic stage, and where the complete cure is not possible. Best way to diagnose the lung cancer is by CT scan. But CT scan is not feasible most of the times, since we don't have a national guidelines or a national program where everybody is screened like breast cancer or a cervical cancer. There are national screening programs, but which is lacking for the lung cancer. So the idea is to diagnose the lung cancer at an early stage. If we do a normal routine X-ray, we may not find the lesions, which are small to be seen on an X-ray. By the time it is seen on an X-ray, it is already advanced, and where the treatment is going to be palliative or to just to prolong the life of the patient.
and complete cure might not be possible at this stage. So now talking about the Cure AI, which is a AI in which we are going to give us alarming features or symptoms it will give us a sign that there is a lesion in the lung and which needs to be evaluated. So the further evaluation would be done with the CT scan, and once the lesion is diagnosed, we will be taking up the patient for further management. So idea is to diagnose the patient at an early stage so that we can offer a minimal invasive surgery and a lung preserving surgeries, and through which the patient is going to have a better outcome and a better survival once the patient is diagnosed at an early stage. So though AI is going to help us diagnose the patients at an early stage, and it would be integrated at all the diagnostic centers across SSO in Nagpur, Ahmedabad, Belgaum. And if there is any X-ray which shows a alarming sign, we will be following up the patient with a further CT scan. So that is how we plan to diagnose the patients. Cure AI and lead the project BDZ from CureSide. Before I actually start, I want to first thank the panel here. Without your support and guidance, I think Dr. Vivek spoke about scaling with empathy. Without the support of innovative surgeons, there is no AI company in the world which can even dream of functioning. So we are here today because you have allowed us, you have put our trust in us, and it is your empathy for the patient which is helping us show our value in our day-to-day objectives. I feel SSO, even without AI, is at the top of the pyramid when it comes to innovation. The fact that you have a vision of specialized cancer care, I think that that will only increase with AI. We are very, very happy that we are able to play a role in your journey of getting patients to surgery faster so that we can help save more lives, because as you already mentioned, 80% of all lung cancer cases are diagnosed right at the end. So Cure has that mission, and in that mission we look for partners who share similar values, similar endeavor for innovation, and Johnson & Johnson exemplifies both those values. We've been very fortunate to partner with the MedTech division at J&J, and we hope to scale things further, and together combined with the vision that J&J had for Project BDZ and the trust which the surgeons at SSO are playing with us, we are hoping that our AI can play a small role in helping save a few lives. Thank you. So सबसे पहले सर आपका क्वेश्चन कि हाउ AI पेशेंट्स को हेल्प कर सकता है, राइट फ्रॉम अर्ली डायग्नोसिस, वो तो हमने बात किया ही. उसके बाद जब ही अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो देर आर सर्टन सॉफ्टवेयर्स विच आर AI बेस्ड जिससे हम सर्जिकल प्लानिंग करते हैं. तो वो भी एक स्टेप रहता है जिससे सेफ्टी एनहांस होता है और एरर्स कम होते हैं ड्यूरिंग सर्जरी. आफ्टर सर्जरी अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, देर आर सिस्टम्स जिससे पेशेंट, पहले क्या होता था कि नर्स जाके पेशेंट को देखते थे, पेशेंट को पल्स बीपी देखेंगे, कुछ वार्निंग है तो साइन देते थे. नाउ देर आर सिस्टम्स जिसमें पेशेंट्स का कांस्टेंट पैरामीटर्स मॉनिटर होता है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो साइन फ्लैग हो जाता है, बोथ टू द डॉक्टर एज वेल एज टू द स्टाफ. सो सेफ्टी बढ़ जाता है. एंड एज डॉक्टर जागेश्वर mentioned and Vivek mentioned, in the post operative care, पेशेंट्स काफ़ी बार टाइम पे फॉलो पे नहीं आते हैं, रिकरेंसेस डिटेक्ट नहीं होते हैं, तो रिमाइंडर्स, ऑटोमेटेड साइंस, वो सब से पेशेंट को हम कंप्लायंस इंश्योर कर सकते हैं ताकि ट्रीटमेंट जल्दी हो. सो देयर आर वेरियस थिंग्स. अभी मैन पावर का बैंडविड्थ कम रहता है, वी हैव ओनली लिमिटेड आवर्स अ डे, बट AI का वो बैंडविड्थ, आई मीन प्रॉब्लम नहीं है. दे कैन कीप फंक्शनिंग इन द बैकग्राउंड एंड हेल्प अस डिलीवर बेटर केयर फॉर द पेशेंट. तो इसका कॉस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? सो कॉस्ट का ऊपर ये इफेक्ट पड़ता है कि अगर आप अर्ली डिटेक्ट करते हो तो जनरली मोस्टली क्या होता है कि 3 मोडालिटी होते हैं कैंसर केयर का. एक सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन. अगर आप कोई भी मैलिग्नेंसी देखें, अगर अर्ली स्टेज में होता है, स्टेज 1 में डिटेक्ट होता है, मोस्टली सिंगल मोनोमोडालिटी, मतलब सिर्फ सर्जरी से ट्रीटमेंट होता है, उसी में आपका कॉस्ट बहुत आधे से ज़्यादा कम हो जाता है. दैट इज़ वन. सेकेंडली रेफरेंस के बाद, जब रेफरेंस के बाद भी अगर आपका डिटेक्शन अर्ली हो जाता है, देन आपका कॉस्ट वापस से कम्स लोअर डाउन. सो दैट रियली हेल्प्स. सो आई थिंक वन ऑफ द वेज कॉस्ट कम करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा AI का ये होगा कि हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करेंगे बीमारी को.
उसमें आपको मोस्टली जो 3 मोडालिटीज़ हैं, अगर आप एडवांस स्टेज में आते हैं तो तीनों मोडालिटी को यूज़ करना पड़ता है मोस्ट मैलिग्नेंस के लिए। तो जब अर्ली डिटेक्ट होता है, जब सिंगल मोडालिटी में ट्रीट हो जाता है, तो देन कॉस्ट ऑब्वियसली कम हो ही जाता है। इंटीग्रेट करने वाले एआई, इसका कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। ये सेम कॉस्ट में जो नॉर्मली आप एक्सरे कराते हैं सेम कॉस्ट में रहेगा। इसके लिए आपको एडिशनली कोई पे नहीं करना है। अगर कोई लीशन डिटेक्ट होता है एआई के थ्रू, उसका आगे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि एक्सरे जो हम नॉर्मली स्कैन सेंटर में कराते हैं, रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट करता है, जिसमें बहुत सारे एक्सरेज होते हैं, उसमें से छोटे लीशंस को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है उस टाइम। तो एआई उस चीज़ को हेल्प करेगा और डॉक्टर्स को कि वो जो लीशन जो मिस आउट हो रहे हैं वो लीशंस को हम पिकअप कर पाएंगे, और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। और अगर कुछ लीशन दिखता है तो हम आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो सब्सिडाइज रेट में ही करेंगे। In terms of the test, there is no additional test also. So आज के ज़माने में almost half the X-rays which are done are of the chest. So हर जगह across diagnostic centers, hospitals, patients are getting chest X-rays for a wide variety of reasons. So our AI doesn't ask the patient to do X, Y, Z other tests and we'll run on it. We work on modalities which are already being used. Chest X-ray patients कर रहे हैं, वो डेटा वहाँ पे है, हम बस उससे और डेटा ले रहे हैं और डॉक्टर्स को दे रहे हैं ताकि दे कैन मेक बेटर डिसीजंस फॉर दैट पेशेंट। हम एडिशनल स्टेप भी नहीं बढ़ा रहे, बिकॉज the goal of AI here is to integrate with normal patient's journey, is not to make life more complex for the patient or for the surgeon. So it's all happening as it would with just a lot better information. Like Dr. Mehta mentioned, manpower is always a constraint in a country like India. So think of AI here as an assistant which does not get tired, which does not miss anything, which works with the tools provided but never stops working. That should be the lookout. जैसे निरंतर एक एडवांसमेंट होता रहता है, जैसे पहले ओपन सर्जरीज करते थे, फिर हम सभी अच्छी तरह से अवगत हैं, अपने लेप्रोस्कोपी आया। तो पहले बहुत ही दिमाग में होता था ये कैसे दूरबीन से देख के कैसे कर सकते हैं, पर आज हर कोई खुद डिमांड करते हैं, तो भी पेशेंट आते हैं वो लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। इसी तरह से एडवांसमेंट है रोबोटिक सर्जरी, जो कि और अच्छा विजन देता है, काफ़ी अंदर काफ़ी उन्हें और ऑर्गन्स को बड़ा करके दिखाता है, जिससे उनका डिसेक्शन जो करते हैं ऑर्गन्स को काफ़ी अच्छा दिखता है, और एक माइन्यूट लेवल पर डिसेक्शन होता है जिससे कि बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। जैसे कि बहुत दूर से कोई चीज़ हम देखते हैं वो कम दिखती है, और नज़दीक से कई में जैसे एक घड़ी वाला आपका देखता है, एक आप आँख से घड़ी रिपेयर नहीं कर सकते आज की डेट में, वो आँख पे लगा के करता था, आजकल माइक्रोस्कोप आते हैं उससे देख के तो अच्छी तरह से वो छोटे से छोटे पुर्जे बदल देता है, और उसको अच्छी तरह से बदलता है देख के, और बता सकता है ये चलेगा नहीं चलेगा। इसी तरह से उसका एक साधारण एग्जांपल है, ऐसे रोबोटिक सर्जरी में कई गुना बड़ा दिखता है अंदर, और इसकी तरह से पेशेंट को एक प्रूवन फैक्ट है कि पेशेंट को पेन भी कम होता है लेप्रोस्कोपी के उसमें, और पेशेंट तुरंत चलने लगता है। उनका डिसेक्शन एरिया जो डैमेज होता है डिसेक्शन की वजह से वो बहुत कम रहता है, इससे पेशेंट का रिकवरी फास्ट होता है, और उसे मॉनिटरी उस पर देखें तो वो पेशेंट जल्दी रिकवर होता है और अपनी ड्यूटी जल्दी ज्वाइन करता है, घर वालों को सपोर्ट की अर्निंग अर्ली स्टार्ट होती है। और आजकल रोबोटिक सर्जरी में बहुत सारे ऑप्शन हैं, इवन दूर से हम जैसे यहाँ पे हैं, हम टीयर 2 सिटीज़ में बहुत लोग, यहाँ से लातूर में कोई ऑपरेट कर रहा है तो डॉक्टर संकेत, डॉक्टर विवेक के लोग यहाँ से गाइड कर सकते हैं उसको कि कैसा कैसा सर्जरी करना है और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। तो उसमें मैन पावर के रिक्वायरमेंट ऐसे, क्योंकि हर जगह ये लोग नहीं पहुँच सकते हैं तुरंत, उसमें भी हेल्पफुल होता है। और बहुत सारी सर्जरी जहाँ पे हम पहले पूरी तरह से उनका मार्जिन, कैंसर में विशेष तरह से उसका मार्जिन निकालना, एक जो कि बीमारी से युक्त नहीं हो ऐसी बीमारी निकालना मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको विजुअलाइजेशन और अच्छा होता है, उसको पूरी तरह से वो निकाल सकते हैं मिनिमम से मिनिमम डिसेक्शन में। तो मेरे ख्याल से आगे फ्यूचर में ये और बढ़ता जाएगा, जैसे लोग ज़्यादा से शुरुआत में काफ़ी डेफिनेटली कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, सीखना पड़ता है ये चीज़ें, पर एक बार सीखने के बाद में बहुत लोगों का हेल्प होता है और अच्छी तरह से सर्जरी होती है। नहीं, कैंसर आज हमारे देश में कैंसर के पेशेंट्स बहुत सारे बढ़ रहे हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारियों का प्रमाण ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, और इस युग में हमें कैंसर पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ कैसे मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा मदद कैसे हो सके, उनका ट्रीटमेंट प्रॉपरली कैसे हो सके, क्योंकि आज पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं। आज सबसे पहला फेस तो आता है, अगर किसी को मालिक ना करे ये बीमारी अगर होती है तो प्राइमा फेसी टेस्ट होता है उसका जो, तो टेस्ट के अंदर ही लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं।
पहले कोई एक्सरे करता है, कोई फिर अलग अलग तरह का जो टेस्ट है उसमें वो करता है। अब एसओएस यहाँ पर डॉक्टर संकेत मेहता और उनकी जो टीम है पूरी, उनके कलीग्स हैं, सब ने मिलके यहाँ पर जो एआई का उपयोग करके टेस्ट डायग्नोस करने के लिए कि इसमें सही में कैंसर की बीमारी है या नहीं है, उसके लिए आज जो यहाँ पर रखा है और इस सिस्टम यहाँ पर इन्होंने अडॉप्ट किया है, मुझे लगता है कि इसको लेके काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लोगों को जो इमीडिएट पहले स्टेज पे बायोप्सी वगैरह के प्रोसेस में जाना पड़ता था, पेनफुल वो प्रोसेस होता था, बायोप्सी करने के बाद नेगेटिव भी आता था वो, तो कहीं ना कहीं एआई प्रोसेस में जब टेस्टिंग होगा तो उसी में डिटेक्ट डॉक्टर्स कर लेंगे कि इनको ये बीमारी नहीं है, दूसरी कोई बीमारी है, टीबी है या कुछ अलग तरह का कोई बीमारी है। तो उससे इस टेस्ट का फ़ायदा कम से कम उन पेशेंट को होगा जिनको कैंसर जैसी चीज़ एक शंका होता था, सस्पेक्ट होता था, और वो जो अब कैंसर के सारे टेस्ट से जिसको गुजरना पड़ता था वो लोग बचेंगे और ये इसमें आसानी होगी। और आज पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का युग है, एआई का यूज़ भी है, मिसयूज़ भी हो सकता है। तो इस हमारी जिम्मेदारी बनती है, और डॉक्टर संकेत मेहता जैसे नामवर डॉक्टर जिन्होंने इस देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जाके उन्होंने कैंप भी किया है, गरीबों की भी मदद की है, उनकी खुद की भी ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के ज़रिए गरीबों को भी, गरीब पेशेंट्स को भी मदद करने का काम करते हैं। और आज जो ये एडवांस टेक्नोलॉजी आई है एआई, उसका इस्तेमाल मुंबई में मुझे लगता है कि पहली बार यहाँ पर एसओएस हॉस्पिटल के ज़रिए डॉक्टर संकेत मेहता और इनकी पूरी टीम ये कर रही है, और हमें उम्मीद है कि इसका फ़ायदा पूरे मुंबई शहर के लोगों को इस एआई टेस्ट के माध्यम से होगा। सर, जैसे कैंसर बीमारी सुन के ही इंसान डर जाता है, जैसे तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो टेस्ट आपने स्टार्ट किया मुंबई में या पहली बार, तो वो कितना यूजफुल होगा? नहीं, ये इस हॉस्पिटल ने और इन डॉक्टर्स ने मिलके जो एआई का सही तरह से यूज़ मेडिकल सिस्टम में करने का जो फैसला किया है, जिसकी शुरुआत ये कर रहे हैं, इसका फ़ायदा डेफिनेटली ख़ास करके जनरल कैंसर के सस्पेक्ट जो पेशेंट होते हैं उनको, और कैंसर पेशेंट को भी आसानी से वो डिटेक्ट कर सकते हैं, और कैंसर नहीं है तो उसका भी मालूमात हो सकती है। तो कुल मिलाकर इसका फ़ायदा बहुत है, इसका एडवांटेज बहुत है। एआई, जैसे मैंने पहले कहा कि एआई का मिसयूज़ भी होता है, और अगर लोग प्रॉपर यूज़ करें तो उसका फ़ायदा भी होता है। तो ये सारे इंटेलिजेंस डॉक्टर्स ने मिलके ये जो तैयार किया है एआई का यूज़ करके, और ये डायग्नोस करने का जो एक प्रोसेस सिस्टम शुरू किया है टाइप करके, उसका फ़ायदा डेफिनेटली लोगों को होगा। तो सर, ये कितना कॉस्टली है या कितना? नहीं, इसका कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। ये जो स्टैंडर्ड एक्सरे आपका होता है, जो रूटीन हेल्थ चेकअप में या किसी भी चीज़ में, सिर्फ ये बैकग्राउंड में काम करता है, और जो अर्ली स्टेज डाउटफुल लीजन्स है उसको वो फ्लैग करता है रेडियोलॉजिस्ट को, ताकि वो बोल सके कि नहीं और आगे टेस्ट करना है और थोरेसिक सर्जन को कांटेक्ट करना है। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि 80% लंग कैंसर एडवांस स्टेज में डायग्नोज होते हैं। इट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया फ्रॉम कैंसर डेथ में हाईएस्ट इज लंग कैंसर, क्योंकि 80% लंग कैंसर एडवांस स्टेज में डायग्नोज होते हैं। तो ये माध्यम से हम अर्ली स्टेज में, जब भी वो 1 सेंटीमीटर से भी छोटा हो, वो स्टेज में हम, जब भी कोई सिम्टम नहीं है, वो स्टेज में डायग्नोज करके पेशेंट को हम सर्जरी के द्वारा क्योर कर सकते हैं। डॉक्टर जितेश थोरेसिक सर्जन हैं, दूरबीन से ये ऑपरेशंस करते हैं, तो वो स्टेज में डायग्नोज होना ज़रूरी है, तब हम ऑपरेशन करते हैं। सर, एआई के थ्रू सिर्फ कैंसर को ही डिटेक्ट किया जा सकता है और भी बीमारी डिटेक्ट हो सकती है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसमें। एआई से काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशंस में इंटीग्रेट करने के बाद बहुत सारी बीमारियों को बहुत अर्ली स्टेजेस में पता कर सकते हैं। ये सेम सॉफ्टवेयर टीबी को भी डायग्नोज करता है और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज को भी डायग्नोज करता है।
सो इंडियन पॉपुलेशन में जैसे ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है, मेजॉरिटी पेशेंट्स जो है हमारे ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया को कभी ना कभी लाइफ में एक्सपोज हो चुके होते हैं, तो उनकी छाती में कुछ ना कुछ लीजन्स दिखाई देंगे, क्योंकि नॉर्मली हम जब एक्सरे देखते हैं उस चीज़ को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो AI इंटीग्रेटेड है तो उसमें थोड़ा सा भी अगर कोई स्लाइटली डाउट भी है उसमें तो वो पिकअप होगा उसमें, तो उस हिसाब से वो जल्दी डायग्नोस कर पाएंगे उसे। सर SSO हॉस्पिटल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए SSO हॉस्पिटल जो हमारा है, हम अफोर्डेबल कैंसर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। जो बाहर जो ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली होती है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में या बड़े हॉस्पिटल्स में, जो फैसिलिटी होती है वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, और वो भी एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में, और हमारी तरफ से भी हम जितना हो सकता है उस चीज़ को हेल्प करते हैं ट्रस्ट के थ्रू या बाकी माध्यम से भी। दूसरा हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एंड वी डू ऑर्गन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, यानी हर एक ऑर्गन का स्पेशलिस्ट है। जैसे थोरेसिक सर्जन सिर्फ थोरेसिक के डॉक्टर करते हैं, ताकि वो रोबोटिक मिनिमल इन्वेजिव जो बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी है वो भी हम दे सके एट द मोस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट। वैसे सर आपको कोई भी पेशेंट पे आपने ये अप्लाई किया है ये मतलब अभी तक? नहीं, ये अभी इंटीग्रेट हुआ है, अभी इस महीने से वो लॉन्च होगा। जितने भी एक्सरेज होंगे हमारी जो नीचे सेंटर है पल्स डायग्नोस्टिक्स में, वो सारे जो भी एक्सरे होता है, भले ही वो किसी भी सेंटर से आने दो, किसी भी दूसरे हॉस्पिटल से आने दो, वो सॉफ्टवेयर में जब वो आएगा एक्सरे, उसमें अगर कोई लीशन दिखाई देता है तो हम उस पेशेंट को इंटीमेट करेंगे और उसका आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे। और सर इसका कितना सक्सेस रेशियो है? इसका सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, 99% सेंसिटिविटी है। उसमें फॉल्स पॉजिटिव रेट 10% के आसपास है। अगर उसमें होता है कि अगर आपने जो डिटेक्ट किया है उसमें से पॉजिटिव कितने चांसेस हैं, तो उसमें पॉजिटिव होने के चांसेस 99% है कि उसमें पॉजिटिव आएगा। थैंक यू।